Welcome to Health Plus program. Today we are going to take you to Cloud9 Hospital, Firozpur Road, opposite to City Plaza, Mahavir Nagar, Bhai Randir Singh Nagar, Ludhiana. At Cloud9, they believe that a child's life is greatest gift, and pregnancy is one of the most magical experience nature can offer. This gift deserves to be nurtured and cared for, not just at birth, but for the entire duration of your pregnancy. Which is why, to ensure a healthy and happy pregnancy, Cloud9 provides you with world-class medical expertise, state-of-the-art facilities, a space filled with love and laughter, and staff dedicated to the holistic well-being of you and your baby. Having celebrated over 2.25 plus lakh births across regions with a strong team of 5,700 employees and 2,000 plus doctors of 40 plus years experience of average experience in the past years. Cloud9 has expanded its reach to multiple facilities across India while continuing to maintain and excel in international standards of care. It is still going strong with plans to reach every woman and child across the country. Our team had a word with doctors who are serving at Cloud9. Let's have a visit to Cloud9 Hospital, Ludhiana. दर्शकों पंजाब प्लस चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ Cloud9 ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੇਲੌਜ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ और एज ए पेडियाट्रिक्स मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। आओ आप देखते हैं। दर्शकों पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं Cloud9 हॉस्पिटल लुधियाना और बात कर रहे हैं डॉक्टर गुरप्रीत बत्रा जी के साथ। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी जिसका कि रेट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई समय था जब लोग छुपाते थे, बताना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आज लोग थोड़ा सा एक्सपोज हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ती चली जा रही है। लेडीज़ की एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ शादी की उम्र बहुत लेट हो रही है। हमारा एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूटेड है, बहुत केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, बहुत केमिकल्स हम कंज्यूम करते हैं, उससे हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस आ रही है। पिछले 10 साल में PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबां ਦਾ ਬਲੌਕ ਹੋਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਟਾਈਮਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ PCOD ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚੇਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ PCOD ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 18-19 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ PCOD ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PCOD ਜਿੱਦਾਂ BP, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰੋਇਡ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ TV ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ PCOD ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ PCOD ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ PCOD ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਸਰ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਨਾ PCOD ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ। ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, अर्ਲੀ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਦੇ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਨਾਲ ਓਵਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਠਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਸਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੇਰੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 3-4 PCOD ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 3-4 ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। और डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे कि
ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਨਸੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੇਬੀ ਉਹਦਾ ਗੋਦ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਆਈਸੀਯੂ ਹੈ, ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਲਈ ਨਿੱਕੂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਹਿਸਟੈਕਟਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 700-800 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਟਅਪ ਫॉर ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਈਵੀਐਫ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਈ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਕਨਸੀਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਆਈਵੀਐਫ ਸਿਰਫ 10 ਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣ, ਓਵਰੀਜ਼ 'ਚ AMH ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਏਜ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਐਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਮਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ IUI ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਵਿੱਚੋਂ 6-7 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਇਰੋਇਡ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪੇ ਕਨਸੀਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IVF ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਈ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਬਾਇਪਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਇਪਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ATT ਐਂਟੀ ਟਿਊਬਰਕੂਲਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ TB ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ IVF ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਡਾਟਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं क्लाउड9 हॉस्पिटल लुधियाना और बात कर रहे हैं डॉक्टर मोनिका नारंग जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं इनफर्टिलिटी में और फर्टिलिटी में ही हम कहेंगे, क्योंकि इनफर्टाइल कपल्स को ये फर्टाइल करते हैं तो फर्टिलिटी वाले डॉक्टर ही बोलेंगे। डॉक्टर मोनिका जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। इनफर्टिलिटी नहीं, हम फर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी आजकल इसको बोलते हैं। रीज़न ये है कि इनफर्टिलिटी को एक टैबू की तरह देखा जाता था, तो ये पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा डिलेमा में होता था जब हम उनको बोलते थे कि आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हो। और फिर सारी सोसाइटीज़, जो हमारी गायनी सोसाइटीज़ होती हैं, हम सब ने मिलकर फैसला किया कि हम इनफर्टिलिटी वर्ड यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंट को ये और साइकोलॉजिकल बर्डन में डाल देता है। तो आजकल जो वर्ड यूज़ होता है वो सब फर्टिलिटी है। हॉस्पिटल जिस पे आप लोग बिल्कुल ईज जोन में हैं, यहाँ पर केवल इनफर्टिलिटी, केवल प्रेगनेंसीज, केवल बच्चों को जन्म और न्यूनेटल में उनकी देखभाल, एक ऐसा सेंटर यहाँ पर पीस ऑफ माइंड बरकरार है। और क्लाउड9 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ही ओनली। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्लाउड9 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का एक चेन है और इसका रीज़न ये है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ तो नहीं कर रहे हैं, 1 या 2 ही बच्चे करते हैं और सबको रहता है कि वो जो प्रोसेस है डिलीवरी और चाइल्ड बर्थ का वो एकदम स्मूथ और सेफ हैंड्स में और एक अच्छे एनवायरनमेंट में हो। यही रीज़न है कि मदर एंड चाइल्ड जो डेडिकेटेड चेन्स हैं वो बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही हैं। डॉक्टर साहब, NRIs की बड़ी चेन आप लोगों के साथ अटैच है, क्या कहना चाहेंगे कि वो बाहर से रिजल्ट आप देते हो और वो आगे आगे चेन बन रही है? क्योंकि क्लाउड9 का जब नाम आता है तो एक ब्रांड, और उसके ऊपर डॉक्टर मोनिका नारंग जैसे वो डॉक्टर जिनका लंबा एक्सपीरियंस और बहुत ही
कल प्रैक्टिस जिन लोगों ने की है? हाँ जी, एनआरआईज के लिए ये बहुत बेनिफिशियल्स हैं जो चेंज आ रही हैं, स्पेशली फर्टिलिटी चेंज जो हैं इंक्लूडिंग Cloud9। उसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि जो अब्रॉड में मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी एडवांस लेवल पे या इतने जल्दी पेशेंट्स नहीं अवेल कर पाते। एक बहुत लंबी लिस्ट रहती है अगर उनको डॉक्टर को कंसल्ट भी करना है, कंसल्टेशन के बाद कोई टेस्ट कराने हैं या प्रोसीजर्स कराने हैं, उसके लिए और भी लंबा टाइम उनको रहता है। बल्कि इसके उल्टा अगर वो इंडिया में आके प्रोसीजर्स कराते हैं या तो 2 या 3 महीने के अंदर उनके सारे टेस्ट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। तो एनआरआई पेशेंट्स के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। यही रीज़न्स हैं कि वो लोग हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, जुड़ते हैं और अपना प्रॉपर प्लान बना के और अपनी छुट्टी लेके फिर यहाँ पर 3 महीने रुक के अपने आईवीएफ करवा के वापस जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि काउंसलिंग जिसका बहुत बड़ा रोल है और आप लोग पेशेंट्स को इस जोन में लेकर जाते हैं, पेशेंट बड़े घबराए हुए होते हैं, मेंटल स्टेट उनकी काफ़ी पजलिंग में होती है और जब आपके पास आते हैं आप उनको इस जोन में ले जाते हैं तो उनको एक सहारा सा मिल जाता है। और यही कारण है कि ये मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स के लिए भी ये सेंटर एक निसंतानता को संतानता देने का वरदान है। बिल्कुल, आईवीएफ आजकल बहुत कॉमन एक ट्रीटमेंट हो गया है, लोग ओपन हो गए हैं इस ट्रीटमेंट को लेके, लेकिन सबको एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता। जितने केस आईवीएफ के होते हैं उतने ही केस आईवीएफ फेलियर के भी होते हैं। तो एक बार अगर इतना जद्दोजहद से गुजर के भी पेशेंट को नेगेटिव रिजल्ट मिले तो वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब ऐसे पेशेंट्स को पॉजिटिव करने के लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग पेशेंट जब हमारे साथ 1-to-1 बैठ के बात करते हैं और उनको पूरा टाइम और पेशेंस के साथ उनकी बातों को सुना जाता है तो वो काफ़ी रिलीव्ड फील करते हैं। सेकेंडली, जो मोडेलिटीज़ हम अप्लाई करते हैं उनको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देने के लिए, इम्प्रूव्ड मोडेलिटीज़ जैसे कि लेज़र हैचिंग हो गया, एम्ब्रियो ग्लू यूजेज हो गया, हिस्टेरोस्कोपीज़ हो गई, वो सारी मोडेलिटीज़ हम यूज़ करके पेशेंट को एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि आपसे हम लोग जुड़े रहें और Cloud9 एक ऐसी चेन जो इनफर्टिलिटी के लिए एक वरदान है और आप लोग ऐसी सेवा करते रहें। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, इट्स माय ऑनर कि आप हमारे पास आए और हमसे बात की। थैंक यू। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं Cloud9 हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर संदीप बंगा जी के साथ जो एज ए पेडिट्रिशियन सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, एक ऐसा हॉस्पिटल जो पहले तो इनफर्टाइल्स को फर्टाइल करता है, बाद में कंसीव होने के बाद में उसके 9 मंथ्स उसका ध्यान रखना और उसके बाद एक हेल्दी बेबी उनके हाथ में देना, और उसके लिए पेडिट्रिशियन की टीम, गायनेकोलॉजिस्टों की टीम और एनेस्थीसिया हर डिपार्टमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपने सच बोला है कि एक ही रूफ के नीचे आपको स्पेशली गायनी, पीड्स और एनेस्थीसिया सारी टीम आपको इस हॉस्पिटल में मिलती है। एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट न्यू है फॉर द पंजाब। इट इज़ ऑलरेडी प्रेवलेंट इन मेट्रो सिटीज़ लाइक बेंगलोर में, दिल्ली में, गुड़गांव में, सब जगह ऐसे मेटर्निटी सेंटर्स हैं यहाँ पर डेडिकेटेड ओनली मेटर्निटी एंड पीडियाट्रिक सर्विसेज दी जाती हैं। बट पंजाब के लिए ये न्यू कॉन्सेप्ट है। सो द मेजर बेनिफिट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज़ कि आपको इस हॉस्पिटल में सिर्फ डेडिकेटेड मैटरनल और पीडियाट्रिक्स केयर ही मिलती है और स्पेशलिटीज़ और आपको सिक पेशेंट्स वो सब नहीं है यहाँ पे। सिर्फ आपको मैटरनल और पीडियाट्रिक्स का ही डेडिकेटेड सेंटर है। हमारी सारी सर्विसेज इसी 2 स्पेशलिटीज़ के लिए डेडिकेटेड है। ये काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग है फॉर द मदर्स एंड द न्यूबॉर्न्स अगर देखा जाए तो। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि बचपन से ही आजकल बच्चे जो हैं काफ़ी एलर्जी है, काफ़ी सीजन ऐसे हैं और बच्चे जो हैं ज़्यादा सिक होने लगे पहले से, और डॉक्टर जब बच्चों को ट्रीटमेंट देते हैं तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं जाकर कई बार उनके मन में थोड़ा खदशा भी हो जाता है जब हम लोग कभी पफ देते हैं, जब हम लोग स्टीम के लिए और ये जो पंप्स यूज़ करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं और पेरेंट्स को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है?
एलर्जीज़ आजकल काफ़ी कॉमन हैं और मेजर रीज़न है कि पोल्यूशन इज़ ऑन अ राइजिंग ट्रेंड, सो मैनी बेबीज़ आर गेटिंग एलर्जिक दीज डेज। सो मेरा यही कहना है कि अगर आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है दीज इनहेलर्स एंड ऑल, ये आफ्टर कंसल्टेशन पे ही लीजिए। और ये कंपेरेटिव अगर हम कंपेयर करें ओरल मेडिसिन से तो ये ज़्यादा सेफ़ हैं इनहेलर। जो ओरल मेडिसिन के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू दीज इनहेलर्स। सो अगर आपको विद प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन ही आप ये मेडिसिन लें और अगर आप इसको ठीक तरह से जिस तरह से आपको बताया गया यूज़ करेंगे तो इसके आपको बहुत बेनिफिट्स दिखने को मिलेंगे। जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़, क्योंकि जो आईवीएफ के साथ बेबी होती है वो तो बेबी होता है, उसमें काफ़ी लोगों का एक दिमाग एक दिल लगा होता है। हालांकि हर प्रेगनेंसी जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आईवीएफ वाली प्रेगनेंसीज वो बिल्कुल उन्होंने बहुत मुश्किल से लिए होते हैं। और उसके साथ आप जैसे पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर जो जन्म लेते ही, चाहे उसको जॉन्डिस है चाहे उसको कोई और प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर उपलब्ध है। यस, वैसे तो हर बेबी ही अपने पेरेंट्स के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आपने स्पेशली बात करी है आईवीएफ बेबीज़ की तो एक्चुअली क्या है, इन पेरेंट्स का स्ट्रगल बहुत रहा होता है कंसीव करने में थ्रू आउट, और एंग्जाइटी मच मोर होती है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। दे आर वेरी एंक्शियस कि हमारा बेबी सेफ हैंड्स में जाए एंड ऑल। तो ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो अगर फुल टीम हमारी एज अ पीडियाट्रिशियन, वी आर न्यूनेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट इन न्यूनेटोलॉजी एक्चुअली, तो अगर ऐसी टीम मिलती है तो पेरेंट्स थोड़ा सेफ फील करते हैं कि हमारा बच्चा राइट हैंड्स में है। तो इससे थोड़ी उनकी एंग्जाइटी भी काम डाउन होती है और हमारी मोर ओवर कितना उनसे इंटरेक्ट करना, उनको बताना अबाउट द स्टेटस ऑफ द बेबी, सारा उनको इन्वॉल्व करना हर चीज़ के लिए, तो उनसे दे फील गुड। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यहाँ से जो जाते हैं दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड कि हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया एंड ऑल थ्रू आउट। दे आर यूजली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस हेयर। जैसा आपका निक्कू यूनिट जो वर्ल्ड क्लास है और इसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और निक्कू में राउंड द क्लॉक हमारे पास बहुत ही एक्सपीरियंस स्टाफ है और हम लोग बहुत ही स्टरलाइजेशन का वहाँ ध्यान रखते हैं। सो अगर हम निक्कू की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा द ब्यूटी ऑफ अवर हॉस्पिटल इज़ कि वी हैव राउंड द क्लॉक पीडियाट्रिशियन यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द निक्कूज जो रन करते हैं मोस्टली दे हैव समटाइम्स दे हैव जूनियर डॉक्टर्स और नॉट। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ Cloud9 इज दे ऑलवेज हायर स्पेशलिस्ट फॉर राउंड द क्लॉक ड्यूटीज ऑल्सो। सो 24/7 even day night there is a pediatrician who is skilled enough to take care of these sick babies, newborns में जो स्पेशलाइज्ड हैं उनकी केयर करने में वो अवेलेबल रहते हैं। दिस इज अबाउट द टीम। और अदरवाइज निक्कू का बात करें तो वी हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज, ऑल द लेटेस्ट मशीन्स टेक्निक्स अवेलेबल विद अस, एंड दिस इज द एड ऑन थिंग टू नॉट ओनली द टीम, वी हैव ऑल द इक्विपमेंट्स ऑल्सो, एंड अवर नर्सिंग केयर we have totally skilled them not only in the medical care but also about the passion. They are very passionate about their work and they are very empathetic about the parents in dealing with them. तो उनके इमोशंस का ख्याल रखना, बिकॉज जब बच्चा एक निक्कू में आ जाता है तो एक तो उनकी प्रॉब्लम तो है ही है, साथ में मेरे को लगता है जो चीज़ मेजरली इग्नोर हो जाती है वो है पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ। इट इज़ वेरी वेरी, वो पेरेंट्स बहुत एंक्शियस हो जाते हैं कि हमारा बच्चा अब नर्सरी में चला गया, उनसे दूर, एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कि 9 महीने आएंगे, बच्चा आएगा, हम खुश हो जाएंगे। बट कभी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा इवेंट हो जाए, कभी प्री मैच्योरिटी हो गई या कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसके कारण बच्चा NICU में चला गया, तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा शैटरिंग हो जाता है वो मोमेंट, एंड वो बहुत एक एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, ऐसा लग रहा है दे आर वेरी सैड कि क्या हो गया हमारे साथ। उस टाइम पे आई थिंक उनकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा मेडिकल केयर, एंड वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए इन द केयर ऑफ द बेबीज। सो वी हमारी पॉलिसी है कि वी डू नॉट रिस्ट्रिक्ट पेरेंट्स को अंदर आने में। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट कि मदर कैन एनी टाइम कम इनसाइड द NICU, फादर कैन विजिट द बेबी एनी टाइम। सो उससे क्या उनको भी लगता है कि हमने बच्चा देख लिया, उसको टच किया, उनकी थोड़ी एंग्जाइटी कम हो जाती है ऐसा करने से। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल और भी आगे बढ़े, वर्ल्ड क्लास यहाँ फैसिलिटीज़ हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आप आए और हमारे साथ बात की, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू जी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक की एक ऐसी पॉयनियर डॉक्टर सुनीता गोयल जी के साथ जिनका लंबा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये माहिर हैं और अभी Cloud9 हॉस्पिटल लुधियाना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका।
हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो पहले तो कभी कभी इन चीज़ों के साथ होता था कि आपको कोई और हॉस्पिटल वाले भी बुला लेते थे, लेकिन आजकल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो बढ़ भी गई हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कुछ डिटेक्शन ज़्यादा बेटर हो गई है। आजकल लोग भी ज़्यादा अवेयर हो गए, ज़्यादा चेकअप के लिए आते हैं। पहले पता ही नहीं लगता था कॉम्प्लिकेशंस, बच्चे डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, मदर में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती थी। आजकल उनकी डिटेक्शन हो रही है, अच्छे टाइम पे ट्रीटमेंट हो रही है और अच्छे रिजल्ट्स उससे आ रहे हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में यही ज़रूरी है कि टाइमली डिटेक्शन हो, प्रॉब्लम जिसको हो रही है प्रॉपर अच्छा ट्रीटमेंट हो, तो बच्चे और मदर का दोनों का आउटकम फिर बेटर होता है। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा यूनिट जिसमें ऑब्स्ट गाइनी, पहले तो आप इनफर्टाइल से फर्टाइल करते हैं, उसके बाद आप जैसे बहुत ही बड़े डॉक्टर्स जिनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है ऑब्स्ट गाइनी में, वो लोग उनको आगे मंजिल तक पहुँचाते हैं। उसके बाद न्यूनेटल यूनिट, क्या कहना चाहेंगे कि कंप्लीट एक यंग सेटअप है जो मदर और चाइल्ड के लिए एक वरदान है? डेफिनेटली ये Cloud9 का सेटअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं कहूँगी इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एज ए डॉक्टर भी हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं मरीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करते हुए, क्योंकि सब तरह की फैसिलिटीज़ एक ही छत के नीचे है अवेलेबल, स्टार्टिंग फ्रॉम अच्छी अल्ट्रासाउंड और लैब फैसिलिटी, फिर एडमिशन फैसिलिटी, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है उनको हैंडल करने के लिए सारी तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। कई बार ना चाहते हुए भी हमारी बेस्ट केयर के साथ भी प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं या बच्चे कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ पैदा होते हैं, तो उनकी केयर के लिए फिर नियोनेटल यूनिट बहुत ही अच्छा है। एक बारी पेशेंट जहाँ पे आ जाए किसी प्रकार की प्रॉब्लम के साथ भी, यहाँ पे अरेंजमेंट्स है सब कुछ हैंडल करने के लिए। सो इट्स आई थिंक Cloud9 बहुत लेट आया लुधियाना में, इसको बहुत जल्दी आना चाहिए था। इट्स द बेस्ट सेंटर आज की डेट में लुधियाना में फॉर डिलीवरीज, और कि हम यहाँ पे पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दें। और लोगों को लगता है कि जैसे Cloud9 हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे तो आपका सिजेरियन हो जाएगा। हमारी यहाँ पे एफर्ट उतने ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए हैं। इस हॉस्पिटल के चार्जेस चाहे आप डिलीवरी नॉर्मल कराओ चाहे सिजेरियन, चार्जेस सेम है। सो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए आपका सिजेरियन किया जाएगा, जो कि लोगों को मोस्टली फील होता है। डॉक्टर साहब, आपका लंबा एक्सपीरियंस, वो ज़माना जब आप को हाथ लगाकर हर चीज़ ज्ञात कर लेते थे और आज आपके पास हर तरह की इन्वेस्टिगेशन, क्या कहना चाहेंगे कि वो समा और ये समा, वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ चल रहा है और नई मशीनरी भी साथ चल रही है? अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अब पहले हम क्लिनिकली, ऐसे नहीं आता कि पेशेंट आएगा और सीधा पहले टेस्ट हो जाएंगे। हम पेशेंट को चेक करते हैं, जो वाजिब टेस्ट हमें लगता है कि करवाने हैं वही टेस्ट करवाते हैं। ऐसे नहीं कि हर पेशेंट को हर टेस्ट एडवाइस करते हैं कि अल्ट्रासाउंड है, किसी को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ज़रूरत है, किसी को कभी कभी ज़रूरत है, और कोई फिक्स टाइम पे सबको ही ज़रूरत है। तो जिस पेशेंट की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा करते हैं। टेक्नोलॉजी नो डाउट उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है हमें टू सेव मदर्स और कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने बच्चों में भी। तो टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, पर उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। उसको प्रॉपरली जब इंडिकेटेड है तभी यूज़ करना चाहिए, और हम ऐसे ही यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग फाइब्रॉइड की बात कर लें, हम लोग एंडोमेट्रियोसिस की बात कर लें, क्या कहना चाहेंगे कि पहले तो कभी कभी ये चीज़ें थी, अब बहुत ज़्यादा ये बढ़ गई हैं और आप इनके लिए जैसे गाइड करते हैं? यस, डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रोसिस आज से 35-40 साल पहले जब मैं यंग डॉक्टर थी तो हम यंग बच्चों में इतना नहीं देखते थे ये प्रॉब्लम। तो प्रॉबेबली ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ ही हैं। बच्चों का खान पान, आजकल हर चीज़ में मिलावट है खाने में, और जंक फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। तो पर ऑफ कोर्स जब प्रॉब्लम हो जाती है तब भी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स तब फिर साथ में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। साहब, आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो यूट्रस को बचाने में अपना विश्वास रखते हैं, और जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं आपकी हमेशा यही कोशिश रहती है, क्योंकि लोग तो देखिए अब जो नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं यंग ब्लडेड, वो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो यूट्रस रिमूव कर दो, और अर्ली स्टेजेस में भी 35-40 साल में भी जो है यूट्रस रिमूव। लेकिन आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये बहुत सारे केस जो हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी आपने सॉल्व किया है। यस, हमारा एज एक्सपर्ट और सीनियर
ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हमारा एक मिशन रहता है टू सेव द यूट्रस। आजकल जितनी डिजीज़ है उतनी ही ट्रीटमेंट्स भी बढ़ रही हैं, तो हमारे पास बहुत ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि हम यूट्रस को सेव कर सकें और मेडिकल ट्रीटमेंट से ही पेशेंट का इलाज कर सके। ऑफ कोर्स कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें मेडिसिन नहीं काम करती, उसमें ज़रूरत पड़ती है यूट्रस रिमूव करने की, पर मैं कह सकती हूँ कि 70-80% पेशेंट्स में मेडिसिन भी काम कर सकती है। सो हर पेशेंट को ये ऑप्शंस एक अच्छे डॉक्टर से मिलनी चाहिए कि आपके पास ये मेडिकल की ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो, और सर्जिकल ऑप्शन है। तो मेडिकल ऑप्शन हमेशा ट्राई करनी चाहिए क्योंकि मेडिकल ऑप्शंस अच्छी रहती हैं अगर आपका यूट्रस सेव हो जाए। कई लोग और कई डॉक्टर ये सोचते हैं कि अब तो बच्चे हो गए, फैमिली कंप्लीट होगी, अब यूट्रस का कोई काम नहीं, पर यूट्रस रिमूवल की भी बॉडी पे इफेक्ट होते हैं और बहुत सारे, स्पेशली अगर यंग एज में यूट्रस रिमूव किया जाता है 35-40 साल की उम्र में, तो इसके मेंटल भी बहुत इश्यूज होते हैं। मदर लेडी में बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आफ्टर यूट्रस रिमूवल। सो इट शुड बी लास्ट रिजॉर्ट, जब कोई मेडिसिन नहीं काम करते और जब बहुत ही ज़रूरी है यूट्रस रिमूव करना, तभी करना चाहिए। सो माई मिशन इज़ ऑलवेज टू सेव द यूट्रस। जैसा आप हमेशा वेलनेस पे काम करते हैं, और जो भी लोग डिप्रेशन का शिकार, क्योंकि हर लेडीज़ को आफ्टर डिलीवरी पोस्ट जो पार्टम जो डिप्रेशन होना है, जैसे आप पहले गाइड करते हैं, पहले उनको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली जब एक पेशेंट के साथ, जब पेशेंट हमारे पास शुरू से आता है, एक पेशेंट के साथ एक अच्छी रैपो बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को अपने एक फ्रेंड, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करो। पेशेंट को ऐसे बना लो कि वो आप में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर कर सके। बहुत सारी यंग लड़कियों को फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको शेयर करते हैं, उनकी काउंसलिंग, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलना, ये सब बहुत हेल्प करता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना और पोस्टमार्टम के लिए स्ट्रॉन्ग रहना, ये एक डॉक्टर का ही ड्यूटी है जब पेशेंट उसके पास एंटीनेटल पीरियड में आ रहा है। डॉक्टर की काउंसलिंग और पेशेंट का डॉक्टर में फेथ गोज ए लॉन्ग वे कि ये पोस्टमार्टम प्रॉब्लम्स ना हो। डॉक्टर साहब, आप एक ऐसे डॉक्टर जिनने सारी ज़िंदगी सेवा की है, और अब Cloud9, ये तो सोने पे सुहागा है कि हमारे डॉक्टर सुनीता गोयल और फिर वो Cloud9 जो वर्ल्ड क्लास एक चेन है, दोनों ने मिलकर जैसे जैसे लोगों को गायनी के लिए ये सेंटर एक ऐसा सेंटर बन चुका है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी हम हैं डॉक्टर कानुप्रिया जैन जी के साथ, जो Cloud9 में अपनी सेवाएं एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन गायनी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि कोई समय था कि जब बच्चेदानी निकालनी होती थी तो सारा पेट जो है वो काट दिया जाता था, और कोई ये समय है कि आप लोग बहुत ही छोटे से एक कट के साथ, जिसके साथ उसका फिगर जो है पेट का वो भी नहीं खराब होता और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ये नहीं है कि 6 महीने की रेस्ट है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगर हम मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट्स की बात करें तो ये काफ़ी मेजर एडवांसमेंट है। इसको हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं, कि बड़ा कट ना लगा के बिल्कुल बारीक कट्स जो आपको महीने बाद नज़र भी नहीं आएंगे, उसके थ्रू हम वही सर्जरी करते हैं। उससे पेशेंट का रिकवरी टाइम बहुत कम हो जाता है, पेशेंट को पेन की फीलिंग बहुत कम रहती है और कॉम्प्लिकेशंस भी उसकी कम हैं, जैसे हर्निया वगैरह, और पेशेंट ज़्यादा जल्दी अपना बैक टू नॉर्मल हो सकता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है, इसके थ्रू हम यूट्रस रिमूवल तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये इनफर्टिलिटी के केसेस में जिनको बच्चा नहीं हो रहा, उनमें डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। ट्यूब बंद है उनको खोला जा सकता है, या कोई सिस्ट हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। तो सिर्फ यूट्रस रिमूवल नहीं है, बहुत और भी इसके यूजेस हैं जिसमें पेशेंट सुबह आता है और शाम को घर जा सकता है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि कंप्लीट सेंटर जिसमें पहले आप लोग उसको कंसीव कराते हैं, उसके बाद उसको 9 महीने का जो क्रूशियल सफ़र होता है वो आप डॉक्टर्स इतने बड़े बड़े हैं इधर, और उसके बाद जब बच्चा जन्म लेना होता है तो हाई क्लास या न्यूरोलॉजी यूनिट और पेडियाट्रिशियन, क्या कहना चाहेंगे कि मदर और चाइल्ड के लिए ये वरदान है हमारा Cloud9? थैंक यू, आप ऐसे वरदान कह रहे हैं। देखिए, है ये एक आजकल की ज़रूरत है।
हमारे लिए एक मदर और बच्चे की केयर अच्छी हो, ये एक ज़रूरत है और वो हम यहाँ पूरी करने की कोशिश करते हैं। और हमने हर चीज़ की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हर चीज़ बेस्ट जो भी अवेलेबल है लेटेस्ट मार्केट में वो सब अवेलेबल है और पूरा एक हमारा सिस्टम बना हुआ है इस चीज़ के लिए। और हम ये नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी आपको बीमारी की तरह फील हो। प्रेगनेंसी और डिलीवरी का समय पूरी फैमिली के लिए, मदर और फादर के लिए एक पॉजिटिविटी वाला टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम हॉस्पिटल में बीमार हैं, तो हम वो एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग दे के, बट एट द सेम टाइम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी अप टू द मार्क देने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर है डिलीवरी के समय, पेनलेस डिलीवरीज, हर तरह का सर्जेरियन, राउंड द क्लॉथ एनेस्थीसिया, हाई क्लास ओटीज और ऐसे कमरे जो आपको एक वर्ल्ड क्लास, एक 5 स्टार होटल जैसे कमरे जिसमें एमबीएस इतना बढ़िया है। जो एनआरआई चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा बेबी ऐसे जन्म ले, वैसे ही जन्म लेता है। हाँ जी, हमने फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास रखने की कोशिश की है और हमारे रिज़ल्ट्स भी वर्ल्ड क्लास हैं। अगर आप Cloud9 ऑल ओवर इंडिया के आप मदर के रिज़ल्ट्स या बच्चे के रिज़ल्ट्स कंपेयर करें तो यूएसए से कंपेयर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारी फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल लेवल की मेंटेन करी हुई। एनआरआईज़ की ये पहली पसंद है और अभी से वो कोई दिसंबर का कह रहा है कि हमने आना है मैडम, कोई नवंबर के लास्ट में आ रहा है कोई। क्या कहना चाहेंगे कि एनआरआईज़ की ये पहली पसंद है Cloud9 लुधियाना, और वो लोग जो है वो काफ़ी लंबी चेन है, क्योंकि डॉक्टर साहब आपका हाथ इतना साफ़ है, आप लोग इस ऐसे काम करते हैं जिसके साथ एक चेन बन रही है। हाँ जी बिल्कुल। हमारी सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट हमारे पेशेंट्स ही हैं। अगर कोई पेशेंट यहाँ ठीक होके जाता है या उसको अच्छी लगती फैसिलिटी, उसको यहाँ पे सेफ़ फील होता है और वो अच्छी रिकवरी करके जाता है तो वो आगे और लोगों को बताते हैं। एनआरआई पेशेंट्स इसलिए हमारे पास ज़्यादा आने की रखते हैं क्योंकि हमारे पास समय है उनको देने के लिए, तो हम उनको जल्दी अपॉइंटमेंट देते हैं, इंटरनेशनल कॉल्स भी अटेंड करते हैं और साथ में उनको पूरा समय देते हैं ताकि उनकी पूरी सेटिस्फेक्शन हो। और जो हमारा हाइजीन लेवल है, हमारा नर्सिंग लेवल है, वो सारा इंटरनेशनल लेवल का है। आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हॉस्पिटल जो हमेशा लोगों की सेवा कर रहा है और ऐसे ही आप लोग करते रहें। आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, आपने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से पहले भी काम किया है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम ऑल्सो। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं Cloud9 हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमीत बत्रा जी के साथ, जो लंबे समय से अपनी सेवाएं एज ए IVF स्पेशलिस्ट इस हॉस्पिटल में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारी स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि IVF जो एक समय पर बहुत ही रेयर होता था, लेकिन आजकल IVF का जो है रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? Well, IVF एक ऐसी टर्म है विच इज़ कंसिडर्ड एज अ बिग टाबू। इनू बहुत वड्डा वहम लिया जाता है, बहुत ही इनू एक आई वुड से टेंशन दे नाल इनू एसोसीएट किया जाता है। बट हाउएवर मैं अपने सारे लिसनर्स नूं ये दसना चाहूँगी कि टाइम सिर अगर असी ये ट्रीटमेंट लै लेंदे हाँ तो डेफिनेटली साडा माँ बाप बनने का सुपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। एंड यस, क्यों Cloud9 फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट? इहदा इक्को ही आंसर है कि जदों तुसीं साडे कोल इत्थे आउंदे हो तो फिर तुहानूं फर्टिलिटी अंडर वन रूफ मिलती है। फर्टिलिटी अंडर वन रूफ का मतलब ये है कि जदों तुसीं साडे कोल पहुँचते हो तो विदिन अ डे और टू तुहाडी पूरी इवैलूएशन जो कि बाहरले देशों में किन्ने महीने लग जाते हैं, जिंदे चलदे इवेंचुअली तुहाडा ट्रीटमेंट किन्ने साल डिले हो जाता है। सो विदिन 1 और 2 डेज़ पूरी इवैलूएशन की जाती है और तुहाडा पूरा रोड मैप घट तो घट टाइम विच बनाया जाता है ताकि एक भी दिन तुहाडा वेस्ट ना होवे। इवेंचुअली अगर तुहानूं किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिवें कि तुहाडे बच्चेदानी विच कोई रसौलियां ने या तुहाडे अंडेदानियां विच खून दी रसौलियां ने, तो दूरबीन राही सारे इलाज मैं खुद इत्थे साडे 5 स्टार ट्रीटमेंट 5 स्टार OT ते 5 स्टार लैब विच कीता जाता है। और फिर
ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IVF ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਲੈਬ ਹਾਈਟੈਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ IVF ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ PGT-A ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਸੈਂਟਰ 1 ਜਾਂ 2 ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੈਲਦੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਸਪਰਮਸ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਲ ਸਪਰਮ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ Cloud9 ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ MBSC ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜੇ ਕਿਤੇ 10 ਕਪਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕਪਲਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਸਪਰਮਸ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟੈਕ ਸਕਾਈਫਾਈ ਲੈਬਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪਰਮਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਚਾਈਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਸਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 16ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਏਜਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਲੜਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਜ ਜੋ ਮੈਰਿਜਸ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਏਜ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਲਗਭਗ 21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਊਐਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੈਲੰਜਸ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਡਨਲੀ ਜੋ ਅੰਡੇਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਏਜ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਟ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋ, ਬਟ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਿਰਫ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਏਜ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਐਂਡਰੋਪੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਮੇਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਊਐਵਰ ਅਗੇਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨਹੈਲਦੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਊਸਾਈਡ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਸਪਰਮ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Cloud9 ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬੈਡ ਮੈਰਿਜ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਸੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੱਧ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ 35 ਸਾਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਸਪਰਮ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਲ ਵੀ ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਸਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ ਸੀਮਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਪਲਸ
ਕਿਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਮੇ ਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਪਰਮ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਲ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਐਬਸੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮਸ ਦੇ IUI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਐਬਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਬੱਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਚੇਨ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੈਠਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਪਲਸ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਜਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਸੇ ਸਾਈਕਲ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 1 ਡੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ। ਹਾਊਐਵਰ ਫੀਮੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਊਐਵਰ ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਡੇ ਔਰ 2 ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਡਾਟਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Viewers, welcome to Punjab Plus. Today we are at Cloud9 Ludhiana and we'll talk to Dr. Sandeep. Dr. Sandeep, welcome to our special show. Thank you, sir. Thank you so much. What will I say? This is an international chain which is getting better and better day by day, and Ludhiana is working very fast in this field. What will I say? So thank you so much. Ludhiana was the first hospital to come in Punjab. Cloud9 ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ Cloud9 ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਨ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੋ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ Cloud9 ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਕੇਟਰਸ ਆਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਵਲ 3 ਨਿੱਕੂ ਹੈ, ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ, ਠੀਕ ਹੈ। IVF ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, OBS, ਗਾਇਨੀ, ਪੀਡਸ, ਨਿਊਨੇਟੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ। ਬਹੁਤ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੋ NRI ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, NRI ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।